خوش آمدید دوستوں، میں ہوں ابتسام زاہد اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پہل جب شائستہ سے ملاقات ہوئی تو میں بہت حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے، دھیمے لہجے میں بات کرتی، اتنی خاموش تب لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی خاموشی کے سبب انہوں نے اس کو مغرور سمجھ لیا اور وہ بھری کلاس میں تنہا رہ گئی، لیکن میں نے اسی کی ہم نشست بننا پسند کیا اور اس کی خاموش شخصیت سے سمجھوتا کر لیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا، یوں ہم ایک جان دو قالب ہو گئے۔ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طب اور آدم بیزار بالکل نہیں ہے، اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ شائستہ دراصل ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی کم بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی کم گو، مدھم لہجے میں بات کرنے والی، سہمی سی عورت تھی، حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ لیکن شائستہ کا باپ ایک روایتی قسم کا جاگیردار تھا، بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی، لیکن عورت کی پیدائش کو جرم جانا جاتا تھا، تبھی اس پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی۔ تاہم یہ شائستہ کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ ان کے لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھروں کو واپس آتے تو اپنے خاندان کی لڑکیوں سے شادی سے انکار کر دیتے تھے اور باہر سے پڑھی لکھی لڑکیاں بیویاں بنا کر لے آتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں پر سے پابندی ہٹا لی اور ان کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھیں گی۔ وہ مجھ سے کہتی، سارا تم نہیں جانتی کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہماری شخصیت آہستہ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلے تو کجا ہم اپنے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ شائستہ کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، نہ جانے تمہارا گھرانہ کس دور میں رہتا ہے، تم ابھی نہیں سمجھ سکتی لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی۔ خیر، مجھے اپنی دوست سے غرض تھی جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، ڈر اور خوف اس کے اندر شامل ہو چکا تھا، خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی آنکھیں اکثر خالی اور ویران نظر آتی تھیں۔ اس کی باتیں کبھی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھیں۔ میں کہتی، اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ کہتی، بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھے تو تہذیب یافتہ کیسے کہلائیں گے۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا مجھے بھائی نے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اگر ان کا ذرا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ کلاس فیلوز سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلباء پڑھتے تھے۔ وہ شائستہ سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، جیسے کوئی نگراں ہر وقت اس پر مقرر رہتا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج سے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھیں، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی۔ مجھے کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا اختر تھا، وہ بہت سلجھا ہوا اور با تہذیب، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ ہوشیار اور ذہین بھی اس جیسا کوئی نہ تھا۔ پڑھائی میں ہم اکثر طالب علم اس سے مدد لیا کرتے۔ شائستہ کو کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں اس کا مسئلہ اختر سے حل کروا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ شائستہ کبھی کبھار کسی لڑکے کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر اختر سے بالکل بھی بات نہ کرتی تھی۔ ایک دو بار اختر نے کوشش بھی کی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔ اختر بہت اچھا لڑکا تھا، رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے شائستہ مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ جہاں میں اور وہ بیٹھی ہوتی اور وہ آ جاتا تو وہ فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اس بات کو وہ بھی محسوس کرتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن تو شائستہ نے حد کر دی۔ اختر کلاس میں آیا، وہاں 2-3 طالب علم اور بھی موجود تھے۔ وہ ہماری طرف آ گیا،
मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया और कहा कि आपकी सहेली सलाम का जवाब देने से ना आशना है क्या? इसको सलाम की फिजत किसी ने नहीं बताई। इसका इतना कहना था कि शाइस्ता ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लास रूम से चली गई। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसुर्दा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो इससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर शाइस्ता का गैर मामूली रद्द अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चुप रहा, तब दिलजोई की खातिर में बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक रखती है। उसका भी कसूर नहीं। हर इंसान अपने साथ अपना खानदानी पस मंजर लेकर आता है। कोई दूसरा ना समझे तो ऐसी बातें वकू पजीर हो जाती है। तब वो गोया हुआ, सारा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं तुमसे भी ज्यादा उसकी फैमिली को जानता हूं क्योंकि वो मेरी कजिन है। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, ताहम उसने मसला ना बताया और चला गया। आज कैसा दिन था? मैं घर आ गई मगर अभी तक ज़हन में आज के दिन का यह वाकया गर्दिश कर रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल आता और कभी शाइस्ता का। मैं सोचती रही कि आखिर शाइस्ता ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से इसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे ज़हन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी उलझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर शाइस्ता का नंबर मिलाया। मैंने कहा, शाइस्ता, तुम्हारे नाम का मतलब तो उजाला है, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया? इसकी आवाज भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम उसकी कजिन हो। ये सुनकर वो एक लम्हे को सकते में आ गई। फोन में उसकी सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। मुझे बताओगी नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरा देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बता दो, मैंने मिन्नत की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूं, तुम आ जा। थोड़ी देर बाद ही इसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं अम्मा को बताकर उसके घर चली गई। वो मुझसे मिलते ही रो पड़ी। काफी चुप कराने की कोशिश की मगर उसके आंसू ही न थमते थे। पता नहीं इसने कितनी मुद्दत से जज्बात के मौजूर पानियों को रोका हुआ था। मैंने कहा, शाइस्ता, तुमने आज तक मुझे ना बताया कि अख्तर तुम्हारा कजिन है। ये बात तो मैं दर व दीवार से भी छुपाना चाहती हूं। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है और उसका बाप मेरे वालिद का चचाजाद है। अम्मा बड़ी और खाला छोटी थी। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। बाबा और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था और जमीन भी मुश्तरका थी। मोहब्बत तकसीम हुई और ना जमीन। बाबा नाना के बड़े दामाद थे जबकि खाला की मंगनी हुई थी, इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन बाबा घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो जमीन फरोख्त करके फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालिदा बोली, अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर रहा है तो बेचने दो, हम रोकेंगे तो वालिद साहिब कहेंगे कि जमीन उनकी है। बेशक उन्हीं की है, वो अभी हयात हैं और जमीन के मालिक भी, लेकिन मकबूल अभी उनका दामाद नहीं बना। अभी से इसे होने वाली बीवी के हिस्से की जमीन बेचने की किया लगी हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तो ये होने नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी बहन की शादी इसके साथ होने दूंगा। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपका चचाजाद भी है? आप इस मामले के बीच में मत पड़ी। मैं वालिद साहिब से बात करती हूं। वालिदा ने अपने वालिद से बात की तो नाना बोले, बेटी, ये जमीन आज भी उन्हीं की है, कल भी। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं। आजकल मैं छोटी लड़की की शादी कर रहा हूं, इसके बाद वो जाने उनके काम। वालिद को नाना का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने चचाजाद को मना किया। उसने कहा कि अब की जमीन तो नहीं फरोख्त कर रहा। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने अपनी जमीन के साथ कुछ जमीन नाना की भी फरोख्त कर दी तो बाबा ने उनसे ताल्लुक खत्म कर दिया और नाना से भी कह दिया कि अगर अपने मकबूल से बेटी ब्याही तो अपनी बड़ी बेटी को अपने घर ले जाना, मैं इसको तलाक दे दूंगा। नाना के लिए ज़ईफी में यह मामला एक इम्तिहान से कम ना था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि बड़े दामाद को राजी करने के लिए छोटे यानी मकबूल की मिन्नत करें कि वो जाकर उनके बड़े दामाद को मिन्नत समाजत करके मिना ले।
सकता कि बड़ी लड़की का घर बसा रहे और वो छोटी को भी बया कर उसके घर का कर दें। नाना के साथ ये सब इस वजह से हो रहा था कि जमीन और जायदाद थी मगर बेटा ना था। अगर कोई बेटा होता तो वो खुद इस मामले को समझ लेता। नाना की उम्र उस वक्त 70 साल थी, वो भला क्यों कर जवान खून का मुकाबला कर सकते थे। बचपन की मंगनी थी, तभी खाला भी खौफ से मरी जाती थी कि कहीं मकबूल से इनकी शादी का मामला खटाई में न पड़ जाए। उधर मकबूल भी अपनी मंगेतर को न खोना चाहते थे। सारा फसाद जमीन का था जो मेरे वालिद का फैलाया हुआ था। वो जमीन की फरोख्त से नाला थे। जब भी घर में खाला की शादी का तज़किरा चलता वो आपे से बाहर हो जाते और शोर मचा देते। दरअसल वो इस घर में अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि बचपन की मंगनी के सबब खाला और मकबूल एक दूसरे को चाहते हैं। वो ये शादी न होने देकर अपने चचाजाद को जमीन फरोख्त करने की सजा देना चाहते थे। मजबूर होकर मकबूल मेरे वालिद के पास आए, अपनी पगड़ी उनके पैरों में डाल दी और कहा कि जमीन फरोख्त कर चुका हूं। आप राजी नहीं हैं तो ज्यादा रकम खरीदार को देकर जमीन वापस लिए लेता हूं। खरीदने वाला भी हमारा रिश्तेदार है, जरूर हमारी मजबूरी पर मान जाएगा, बशर्त ये कि अब नाराजगी खत्म कर दें। गरज खरीदार को ज्यादा रकम देकर जमीन वापस ले ली गई, मगर वालिद साहब दिल से राजी फिर भी ना हुए। बहरहाल खाला की शादी मकबूल चचा से हो गई। वालिदा ने खाला से अहद लिया कि अगर मेरे यहाँ लड़की हुई और अगर तुम्हारा पहला लड़का होगा तो तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाओगी। खुदा की करनी शादी के 10 माह बाद खाला ने अख्तर को जन्म दिया। मैं अख्तर से 1.5 बरस बड़ी हूं, लेकिन जन्मदिन से ही मुझे अख्तर के नाम का कर दिया गया था। इस रिश्ता पर तमाम खानदान वाले राजी थे। इसकी वजह वही कि एक तो दुश्मनी खत्म हो गई, दूसरी जमीन तकसीम न हो सकी। वक्त गुजरता रहा। अख्तर मजीद पढ़ने शहर चला गया क्योंकि इसके वालिद इन दिनों शहर में थे और कॉलेज भी शहर में था। मुझे भी शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था। वालिद और भाई ने इस शर्त पर दाखिला दिलवाया कि वहां ना तो खाला के घर जाओगी और ना अख्तर से बात करोगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। गोया बाबा ने अभी तक खालू को दिल से मुआफ न किया था। उन्होंने खाला से शादी के बाद बीवी की जमीन बेची तो बाबा की दुश्मनी फिर से ऊद आई। अब इनके लिए दिल साफ कर लेना अमर मुहाल हुआ और मुझे भी उनकी नीयत का पता चल गया। मैंने अहद कर लिया। दिल में अख्तर के लिए नरम गोशा तो बचपन से था, मगर तालीम की खातिर वादे का पास भी था। लिहाजा मैंने कॉलेज में मोहतात रवैया अपना लिया, हालांकि दिल से ऐसा ना चाहती थी। अख्तर नहीं जानता कि मैं किस लिए इसके साथ बात नहीं करती और मोहतात रहती हूं, इस पर जाहिर भी न कर सकती थी। खुद से इसे दूर रखने की खातिर उसके सवा चारा न था कि बेरुखी से पेश आऊं ताकि वो मेरी तरफ से मायूस हो जाए। मैं इससे बात करना चाहती थी, बताना चाहती थी, मगर खौफ था कि मुझे कॉलेज से ना हटा लिया जाए और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते ना हो जाए और मैं इसको देखने से भी रह जाऊं। अख्तर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ना इससे दूर जा सकती हूं और ना बात कर सकती हूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वाकई मेरी सहेली बहुत दुखी थी। हम दोनों ही नहीं जानती थीं कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। मैंने भी अख्तर की आंखों में शाइस्ता के लिए प्यार की कंदीलें जलती देखी थीं, मगर घर वालों के खौफ से वो बेचारी मजबूर थी। अगर इसके साथ ऐसा रवैया न रखती तो वो जरूर इससे बात करने की कोशिश करता, और ये बात जब शाइस्ता के घर तक पहुंचती तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होती। मैंने कहा, सब्र से काम लो, ये 2 साल किसी तरह पूरे कर लो। इसके बाद अपने जज्बात तुम अपनी खाला तक पहुंचा लेना, वही कोई रास्ता निकालेंगी। सब्र के साथ शाइस्ता ने तालीमी साल पूरे किए और एक दिन मुझसे मदद चाही। मैंने उसकी खाला को फोन किया, अपना नाम बताया। वो शफीक आवाज में बोले, अरे मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी मगर तुम्हारा नंबर नहीं था। जाने शाइस्ता को क्या हुआ है, अख्तर से इतनी नफरत करने लगी है। तुमसे इसका सबब पूछना चाह रही थी। खाला, वो नफरत नहीं करती, वो तो अख्तर से मोहब्बत करती है, लेकिन इसके वालिद नहीं चाहते कि उनकी शादी हो। आप अपनी बहन से बात कीजिए। मैंने बात की है, वो कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। तो फिर अपने वालिद शौहर को शाइस्ता के बाबा के पास भेजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। वो और उनके शौहर अंकल के पास अख्तर के लिए शाइस्ता का हाथ मांगने गए तो उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब क्या रह गया था? शाइस्ता और अख्तर ने कहा कि हम इकट्ठे खुदकशी कर लेते हैं। उनके नाना हयात थे, बोले, अभी मैं जिंदा हूं
तुम लोगों को खुदकशी करने की जरूरत नहीं, जैसा कहता हूं करो। खालू मकबूल को भी अपनी बेइज्जती पर गुस्सा था। उन्होंने चुपके से बड़ी खाला से राब्ता करके उनको उकसाया कि बेटी का साथ दो, मैं शाइस्ता और अख्तर की शादी करा देता हूं, देखता हूं कि तुम्हारा शौहर क्या कर लेता है। पहले तो शाइस्ता राजी नहीं थी, फिर नाना के समझाने पर उसने अपने बाप के घर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद के दिया और नाना के पास चली गई। एक खत अपने वालिद के नाम लिखकर रखाई कि मेरी गलती, मेरे कसूर को मुआफ कर दिया जाए, मुझे वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना नाना खुद आपके खिलाफ अदालत में गवाही देंगे। वो मेरा निकाह अख्तर से पढ़ाने और अदालती कार्रवाई करने के बाद हमको दुबई रवाना करेंगे। फिक्र न कीजिए, खाला ने अपने तरके की तमाम जमीन मेरे नाम कर दी है। आपको जमीन चाहिए थी, वो आपकी बेटी को मिल गई है। बाकी हर किसी ने अपना हक ले लिया है, इसमें आपकी नाराजगी बेजा है। अपने नाना से बदला लेना है तो ले लीजिएगा। हम तो इस वक्त वतन को खैरबाद कह चुके होंगे और अगर आपने इस उम्र में मेरी वालिदा को तलाक दी तो उनको संभालने के लिए उनके बेटे मौजूद हैं। वो दिन और आज का दिन शाइस्ता से सब ने राब्ता रखा सिवाय इसके बाप ने, जिसका जिंदगी भर इसको गम रहेगा। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।